Hello students, welcome to the YouTube channel of Next IS. I am Anil Tiwari. I am back again with another session of daily news analysis. From the Hindu and the Indian Express, we have picked up some really interesting article and we will be discussing them in detail. The very first article in the prelim section is related to the air defense system of India. We will be going in detail what kind of air defense system we have. The second article will be related to predatory pricing and Competition Commission of India, that we will discuss what is predatory pricing and how it affects. On the third, we will have maternity mortality ratio that has slowed down in India. We have achieved really great numbers. We will discuss what is the definition of MMR and how did we come up with this. And the fourth number, we will have chikungunya vaccine and the disease discussed and the type of vaccine that exists in the world. At the last, in the main section, we will be discussing the issue of public health system in India and how it is fragmented because of our history, constitution and other things, and how we can do it better by making some changes in the education. So tag along, we'll watch a great discussion today. So the first article relates to the air defense system of India. What we have done is that we have thwarted a large attack on one of our cities, that is Jammu, and also we have destabilized Lahore's air defense system. So these two events took place. Many people are talking about S-400 and many other defense equipments that have helped India to achieve this. We will decode all of these weapons that are there with Indian forces and what different kinds of weapon we have acquired and what are their capabilities and how does air defense system works. How do we execute the overall plan, that we will discuss, and we will also see S-400 in little detail, that how S-400 basically works and what do we have. So that is the goal right now. So this is the news that India hits back and also thwarted a large attack by the Pakistani armed forces. So it will come in your GS paper 2 IR section, GS paper 3 security section, and so the news is this only. That we have thwarted, and many cities like Jammu, Pathankot, Udhampur were targeted and many civilians were targeted. That is really shameful incident that civilians have been targeted, although our attack was directed on terror camps situated in the Pakistan, and we did not target, and it was very calculated, very much precise, but the response has been very blunt, and so that's why it is important that we discuss this. So a little bit about S-400. We have acquired S-400 from none other than our friend Russia, and there is this company called Almaz Central Design Bureau who has basically developed S-400 Triumph, and it is widely regarded as one of the most advanced and formidable weapon systems around the world. What do we call technically this weapon system? We call it SAM. That is basically surface to air missile system, SAM system. Okay, we have procured and we have called it, we have integrated a lot of things into this S-400. It is not that Russia has given the overall air defense system to us. They have given a component of this air defense system, that is S-400. We will understand that this system is very complex. S-400 is only a part of it. So we have made our own defense system. We call it Sudarshan Chakra. Of this is part the Russian S-400. Okay, and we have 3 squadrons already optional, although we ordered 5 squadrons and they will be delivered by 2026. And the beauty about this weapon system is that it is very fast, not in terms of, let's say, its loading. It can be ready within half an hour. It can be active within seconds, and it can move also. On road it can go up to 60 kilometers per hour. On tough terrain it can go about 25 kilometers per hour. So it is highly agile also. Agile, fast and easy to ready, and it can shoot down a lot of different things. It can shoot down aircrafts, it can shoot down drones, it can shoot down many other things. Also it has a very long range. So we will see how long range this has. So if you can see, it can shoot down combat aircraft, stealth aircraft,
armed aerial vehicles, precision guided munitions, specialized electronic warfare and jamming aircraft. It can shoot down cruise missiles. It can basically ballistic missile. It can shoot down ballistic missiles also. So the range is very, very large. You will see. So it has why it has such a long range. There is a logic to it also. It has 4 different kinds of missile systems. These are very difficult name. You don't need to remember, but you can see that they range in different things. For example, from 40 kilometers to 400 kilometers, they have this max and minimum range, and they have different speeds also, from Mach 3 to Mach 14. That is sound. The speed of sound. Mach is speed of sound. So Mach 3 to Mach 14, and the altitude range is also very varying, from 10 to 60 kilometers to 30 to 185 kilometers. So you can see how long area it can cover, the S-400. Also, it has different radars. All these radars have different applications. Some radar work as a acquisition and early warning radars. Some work as a fire control and target illumination. So वन रडार, एक रडार क्या कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है कि कोई चीज़ आ रही है अपने साइड में, दूसरा रडार उसको ट्रैक करेगा, तीसरा रडार हेल्प करेगा कि जो हम शूटिंग कर रहे हैं उसको गाइड करेगा. तो ऐसे बहुत सारे रडार हैं जो बेसिकली इनको साइमल्टेनियसली काम करते हैं. एक हाई एल्टीट्यूड एक्विजिशन रडार भी है जो कि ऊपर से आने वाली चीज़ों को भी देखता है. एलिवेटर्स रडार्स भी हैं, बहुत सारे रडार्स हैं, ठीक है. सो ये सारे बेसिकली रडार्स इसमें काम करते हैं. उनकी रेंज भी 600 किलोमीटर से है, इसकी वेरिएबल रेंज है. दे हैव ग्रेवस्टोन, बिग बर्ड, ये सब नाम है. अगर प्रीलिम्स में कभी ये नाम आए तो आप उसको मैच करा सकते हो. फर्दर now you should understand that this system was given by Russia to us. All these different missiles which can shoot down different targets, all these radars which can capture these different targets. But what we have done is we have incorporated our own systems. Why? Because let's say somebody is shooting a drone towards us, very cheap drone, or let's say somebody is shooting not so threatful target. We will not waste S-400. So we have incorporated our own maybe less, maybe more efficient, cheaper versions, cheaper systems into our air defense system. We will look at all these missiles that we have acquired from different countries. Our own DRDO, our own industry has also produced a lot of missiles, drones and many things we will discuss. So in this we will see Akash we have added. Akash is basically medium range सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, 25 से 30 किलोमीटर के आसपास की है ये. और ये क्या करती है, इट प्रोवाइड्स क्लोज इन लेयर्ड डिफेंस विद S-400 एज लॉन्ग रेंज शील्ड. सो S-400 को हम लॉन्ग रेंज पे इस्तेमाल करते हैं, आकाश को शॉर्ट टर्म में. देन वी हैव रोहिणी रडार. इट हैज 3D सर्विलेंस radar. So we have added into this and it basically queue up Spider and Akash missile. These two missiles are medium range missile system, surface to air, and Rohini radar basically triggers them. So that's why we have added into it. Then we have IACCS. This is Integrated Air Command and Control System. Always remember that detection is one part. I'll tell you in one of the next slide. One is the detection. Second is the basically that you are firing at that locking that basically target, and then it is interception. So there are 3 stages of air defense system. डिटेक्शन, देन लॉकिंग एंड देन इंटरसेप्शन. बेसिकली आप किसी को डिटेक्ट करते हो, उसको लॉक करके रखते हो, फिर उसको अटैक करते हो. बट ये सब काम होने के लिए आपको कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत होती है. दैट अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट हो, ट्रिगरिंग अच्छा हो, तो पूरा का पूरा एक सिस्टम बिठाना पड़ता है. वो ये है इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम. ये कनेक्ट करता है S-400 टू अदर AD सिस्टम इन एयरफोर्स ऑपरेशंस. देन वी हैव BMD फेज 1 एंड जिसमें है PDV एंड AAD. बेसिकली ये बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर्स है. वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल सून. सो इट वर्क्स इन टेंडम विद S-400 फॉर मिसाइल डिफेंस. अब S-400 में क्या है, ट्रैकिंग का सिस्टम है, डिटेक्शन का सिस्टम है, देन एंगेजमेंट का है, इंटरसेप्शन का है एंड आइडेंटिफिकेशन का है. मीनिंग ये सारे जो टर्म्स इस्तेमाल हुए हैं इसका मतलब ये है कि S-400 पहचान लेता है कि ये फ्रेंडली एयरक्राफ्ट है कि दुश्मन का एयरक्राफ्ट है, उसके बेसिस पे उसको पकड़ता है और उस पर फायर करता है. ये पूरा एक सिस्टम S-400 में चलता है. ओके, देन वी शुड लुक एट हाउ डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच वी अप्लाई. वन इज दैट वी डिफेंड आवर ओन सिटीज. सेकेंड इज दैट वी डिस्ट्रॉय द एनिमीज डिफेंस सिस्टम. देर आर 2 approaches.
So in today's news, we have seen that air defense system of India worked as a shield protecting our infrastructure in urban areas, and also we have neutralized the Lahore's air defense system. So both we have done, defended and attacked. Attacked, and how did we attack? We basically disabled the Lahore's air defense system using different missile system, and there are different weapons. I will come to them very nicely. So let's see. First and foremost, let us discuss that how air defense system basically functions. What are different stages of air defense system? As I was discussing, the first one is that we detect. So we use radar system and satellite system. मीनिंग आपने एयरक्राफ्ट हमारी तरफ भेजा तो हम रडार का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर आपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हमारी तरफ भेजी तो हम सैटेलाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो डिटेक्ट करने के लिए रडार और सैटेलाइट दोनों का इस्तेमाल करते हैं. रडार में क्या होता है? एक ट्रांसमीटर होता है. देयर इज अ ट्रांसमीटर विच विल पुश सिग्नल आउट, and then there will be a receiver which will receive the signals, and then we will process this data. This data will be processed to know how far this object is, how much speed it is coming towards us. We use Doppler shift for that. Then at what altitude it is, and then object type कैसा है. तो सिग्नेचर पढ़ते हैं उस ऑब्जेक्ट का. एयरक्राफ्ट है, मिसाइल है, अपना है, उनका है. ऑल दीज थिंग्स आर डन इन द डिटेक्शन फेज. डिटेक्ट हो गया एक बार. अब क्या होगा? ध्यान रहे, मॉडर्न जो रडार सिस्टम है वो साइमल्टेनियसली सारी डायरेक्शन में देख सकते हैं. अर्लियर रडार एक ही डायरेक्शन में दिखता था. तो अभी हमारे पास फेज्ड एरे टेक्नोलॉजी भी है, जैसे कि इजरायली ELM 2080 ग्रीन पाइन यूज्ड इन इंडियाज BDM प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम में हमने इजराइल का एक सिस्टम लगा रखा है जो एक साथ चारों तरफ देख सकता है, डिटेक्ट कर सकता है. तो पहली फेज अगर आपको समझ में आ गई तो सेकंड फेज पे चलते हैं. अब जैसे ही डिटेक्ट हो गया तो ट्रैक किया जाता है उसको. ट्रैक में करना क्या होता है? हमें कॉन्स्टेंटली उसको फॉलो करना होता है, जिसको हम लॉकिंग भी कहते हैं. मतलब आपने कभी मूवीज में देखा हो तो वो टे 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 करता हुआ आगे आता है, तो वो लॉक ट्रैकिंग पीरियड है. उसमें हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फायर कंट्रोल रडार होते हैं, इंफ्रारेड सेंसर्स होते हैं, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमराज होते हैं और लेजर रेंज फाइंडर्स होते हैं. रेंज फाइंडर का मतलब होता है कि हम अप्रॉक्सीमेट लोकेशन पता कर लेते हैं ऑब्जेक्ट की लेजर्स के थ्रू. देन चैलेंजेस होते हैं इनके कुछ. सेकेंड फेज जो है वो चैलेंजिंग होती है. वाई? बिकॉज देखो मल्टीपल थ्रेट्स आ सकते हैं, उनको सबको पकड़ के रखना और उनको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल हो सकता है. देन फ्रेटिसाइड हो सकती है, मीनिंग दैट वी कैन डिटेक्ट आवर ओन एंड देन डिस्ट्रॉय इट. देन वी हैव टू मेंटेन लॉक फॉर द स्टील्थ एयरक्राफ्ट्स, जैसे कि ब्लैक हॉक है US का, वो पाकिस्तान में गया था, रडार ने डिटेक्ट नहीं कर पाया था. क्यों? बिकॉज वो स्टील्थ एयरक्राफ्ट था. देन जैसे ही अगर हमने ट्रैक कर लिया, यानी डिटेक्ट किया, उसको ट्रैक किया, देन वी हैव टू बेसिकली अटैक इट. देन वी हैव टू अटैक इट. इसको बोलते हैं इंटरसेप्शन फेज. इसमें क्या होता है? वेपन्स एक्टिव हो जाते हैं. अब कैसे वेपन एक्टिव होते हैं? वेपन डिपेंड करते हैं कि उधर से आ क्या रहा है. अगर मिसाइल आ रही है तो हम डिफरेंट वेपन इस्तेमाल करेंगे. अगर उधर से एयरक्राफ्ट आ रहा है तो डिफरेंट वेपन इस्तेमाल करेंगे. उधर से अगर ड्रोन आ रहा है तो हम डिफरेंट वेपन इस्तेमाल करेंगे. वाई? बिकॉज वो कहते हैं ना कि सुई का काम तलवार से नहीं होता, तलवार का काम सुई से नहीं हो सकता. सो डिपेंडिंग ऑन इट, बिकॉज महंगी भी होती हैं. जैसे आपने अगर S-400 का इस्तेमाल कर लिया, उधर से आया 10,000 रुपये का ड्रोन, उधर से 5 करोड़ की मिसाइल छोड़ दी उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो दैट विल नॉट वर्क ऑल्सो. सो वी यूज वेरी स्मार्ट टेक्नोलॉजी. वॉट डू वी डू? डिपेंडिंग ऑन द डिटेक्शन फ्रॉम द रडार वी सेंड द एयरक्राफ्ट. वॉट डज एयरक्राफ्ट डू? अब जेट जाएगा तो जेट क्या करेगा? इट विल डू एयर टू एयर कॉम्बैट. इट विल इंटरसेप्ट द एयरक्राफ्ट बिफोर इट लॉन्चेस इट्स वेपन. इसका काम ये होता है. इनके पास होते क्या क्या है? जैसे अपने पास कौन कौन से एयरक्राफ्ट हैं? अपने पास डेसॉल्ट का राफेल है. वी हैव राफेल. राफेल मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, बहुत सारे काम कर सकता है. एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है उसके अंदर, और लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन इट कैन डू. देन वी हैव सुखोई Su-30 MKI. एयर डोमिनेंस दिखाता है BVR मिसाइल्स के साथ. बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, मीनिंग दैट इफ पायलट कैन नॉट सी, उसके बियॉन्ड भी मिसाइल छोड़ सकता है. उसमें ऐसा सिस्टम है सुखोई में. देन MiG-29 है हमारे पास, हेल का तेजस है. देन हमारे पास MiG-21 बाइसन भी है. ठीक है. देन वेपन्स इसके अंदर क्या क्या है? एक अस्त्र मिसाइल है, एक R-77 मिसाइल है, MIC एक मिसाइल है, पाइथन 5 मिसाइल है. इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स भी इनके अंदर हैं, मीनिंग दैट कि लेट्स से उनका जो रडार सिस्टम है अपने एयरक्राफ्ट को कंफ्यूज करने की कोशिश करे, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, उनका जो एयरक्राफ्ट आ रहा है उसको भी हम अटैक कर सकते हैं, उसको कंफ्यूज कर सकते हैं. ठीक है. हमारे पास शैफ फ्लेयर डिस्पेंसर्स होते हैं, मीनिंग जैसे कि मान लो आपका एयरक्राफ्ट जा रहा है,
उनका एयरक्राफ्ट आपके पीछे आने लग गया तो आप फ्लेयर छोड़ सकते हो, वो फ्लेयर चारों तरफ फैल जाते हैं और जो एयरक्राफ्ट आ रहा है उसका रडार सिस्टम घबरा जाता है, मतलब कंफ्यूज हो जाता है, तो वो भी हमारे पास होते हैं। देन सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी होती हैं, जैसे पहली चीज जो हम छोड़ते हैं वो एयरक्राफ्ट छोड़ सकते हैं, दूसरे नंबर पे हम मिसाइल छोड़ सकते हैं डायरेक्टली। एयरक्राफ्ट छोड़ ही नहीं रहे, हम सीधा मिसाइल छोड़ रहे हैं उसके ऊपर। फायदा क्या होगा, पायलट की जान खतरे में नहीं जाएगी, एयरक्राफ्ट नहीं भेजना पड़ेगा, और मिसाइल बड़ी प्रिसाइज होती हैं, दे कैन टारगेट वेरी क्विकली, सो दैट इज द एडवांटेज ओवर एयरक्राफ्ट्स। हमारे पास 3 टाइप की मिसाइल हैं, शॉर्ट रेंज की हैं, मीडियम रेंज की हैं और हाईवी रेंज की हैं, दूर रेंज की हैं, जैसे कि 10 किलोमीटर तक, 50 से 100 किलोमीटर और 200 से 400 किलोमीटर की है हमारे पास। एग्जाम्पल क्या है इनके, हैवी में हमारा S-400 है, मीडियम में जो है हमारे पास टेक्टिकल प्रोटेक्शन है, जैसे कि हमारे पास मीडियम में आकाश है, हमारे पास पाइथन है और डिफरेंट डिफरेंट मिसाइल्स हैं। शॉर्ट रेंज में हमारे पास MANPADS है, बेसिकली इसको हम मैन पैड्स बोलते हैं। बहुत सारे गन्स होती हैं, बोफोर्स की गन्स होती हैं और डिफरेंट गन्स होती हैं जिनको हम मैन माउंटेड होती है, मतलब इंसान भी चला सकता है, 10 किलोमीटर तक ही होती है वो, जैसे बजूका आपने देखा हो, वो उसको भी शॉर्ट रेंज का आप बोल सकते हो, ठीक है। इंडिया में सिस्टम कौन कौन से हैं सरफेस टू एयर मिसाइल के, जैसे S-400 ट्रायम्फ है, 400 किलोमीटर का रेंज है, 80 टारगेट कर सकता है, मतलब अगर 80 मिसाइल एक साथ आएंगी तो S-400 उनको टारगेट कर सकता है। आकाश मिसाइल सिस्टम है, ये मीडियम रेंज का है, रडार गाइडेड है, रोहिणी रडार होता है इसमें। बराक 8 है, इंडिया और इजराइल का साथ में बना हुआ एक सिस्टम है जिसको हम बराक सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। स्पाइडर है, क्विक रिएक्शन, ये भी इजराइल से हमें मिला है। पाइथन 5 और डर्बी मिसाइल इसके अंदर होती हैं। फिर एक हमारे पास बहुत पुरानी चीज़ है जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल ए में क्या होता था, जैसे आपने पुरानी मूवीज अगर देखी हो, देयर वाज अ गन, अगर एयरक्राफ्ट आ रहा है तो गन शूट करते थे उस पर। दिस इज वेरी ओल्ड, बट नाउ वी यूज इट टू शूट डाउन ड्रोन्स, एंड ऑल्सो व्हाट वी हैव डन, इट इज नॉट मैन यूज्ड, इट इज नाउ हैव अ रेडार सिस्टम। सो ये चीप पड़ती है, सस्ता पड़ता है। देखो गोली हमेशा सस्ती पड़ेगी मिसाइल से, हमेशा। एक एयरक्राफ्ट को उड़ा के मिसाइल से किसी चीज को मार रहे हो, उससे अच्छा गन चला लो। सो एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी इज cheap and efficient, so we still use it. So this supplements the already having S-400 और SAM मिसाइल सिस्टम और फाइटर जेट। ये बहुत हाई रेट पे फायर करते हैं, 1000 राउंड 1000 राउंड पर मिनट फायर करते हैं। टाइम और प्रॉक्सिमिटी फ्यूज सेल भी होते हैं, मीनिंग दैट वो जाते हैं और एक टाइम के साथ फट जाते हैं और बहुत सारे छल्ले उनमें से निकलते हैं ताकि वो इफेक्टिव हो सकें। फायर कंट्रोल सिस्टम भी इनमें होता है, ठीक है। इंडिया में ZU-23-2 जो शायद कल इस्तेमाल भी हुआ है, L-70 बोफोर्स है, स्काई शील्ड 35 mm है, अहेड एमओ के साथ आता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होता है एक, आप जैसे गन है, गन का इस्तेमाल कर सकते थे, अब हम एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे ड्रोन चले आ रहे हैं तो हम उनकी तरफ सिग्नल भेजते हैं, उनको कंफ्यूज कर देते हैं, उनको वापस कर देते हैं। दैट कैन ऑल्सो बी डन। इसमें एग्जाम्पल है टेक्नोलॉजीज का, जैसे रडार जैमिंग है, GPS स्पूफिंग है, डेटा लिंक डिसरप्शन है, जैसे फॉल्स टारगेट जनरेशन है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे रेडार जैमिंग तो आप समझ गए, रडार से क्या कर दिया, जैम कर दिया उनको। GPS स्पूफिंग क्या हो गई, दैट कि उनको GPS सिग्नल फॉल्स दे दिया, उनके पास कुछ GPS सिग्नल भेज दिया अपनी तरफ से। देन हम और क्या कर सकते हैं, डेटा लिंक डिसरप्शन कर सकते हैं कि जो जो उन्हें मॉनिटर कर रहे हैं उनकी लिंक को डिस्टर्ब कर दो। देन फॉल्स टारगेट जनरेशन कर सकते हैं, मतलब कि टारगेट जो लेके आ रहे हैं उनको कोई और टारगेट दे सकते हैं, वो उसको अटैक करके खत्म हो सकते हैं। प्लेटफॉर्म होते हैं बहुत सारे इनको लॉन्च करने के लिए, संयुक्त सिस्टम है DRDO को, ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है C3 समझना। C3 क्या है, C3 का मतलब है कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन। यानी ये सारे वेपन तो ठीक है, ये सारे वेपन अपनी अपनी जगह रखे हुए हैं, लेकिन इन सबको एक ऑर्गेनाइज तरीके से फायर करना और जो चीज़ जहां आ रही है, जैसे आ रही है, उनको डिसीजन लेना, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए C3 सिस्टम इस्टेब्लिश किया जाता है, जिसमें एक कमांड होती है, एक कंट्रोल होता है और एक कम्युनिकेशन का सिस्टम होता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक प्लेस हो और कोई एक आदमी या कोई बैठा हो जो डिसीजन ले सके कि अगर कुछ डिटेक्ट हुआ तो उसको फायर करके तुरंत की तुरंत तोड़ा जा सके। तो एयर डिफेंस सिस्टम में बहुत सारे ये सारे कंपोनेंट साथ में काम करते हैं और तब एयर डिफेंस सिस्टम इफेक्टिव होता है। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि जो उल्टा हम एनिमी के जो डिफेंस सिस्टम है उसको कैसे तहस नहस करते हैं, जो कि लाहौर में हुआ। उसको टेक्निकल टर्म्स में हम कहते हैं SEAD, दैट इज कॉल्ड सपरेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंडर्स। हाउ डू वी डू इट, वी डू इट बाय एंटी रेडिएशन मिसाइल। मतलब कि कुछ मिसाइल होती हैं जो जाके बम फोड़ती हैं, लेकिन कुछ मिसाइल ऐसी होती हैं जो जाके रेडिएशन छोड़ती हैं। रेडिएशन से क्या होगा, रेडिएशन से उनके जो ट्रांसमीटर्स हैं वो सारे फ्लक्चुएट करने लग जाएंगे, ठीक है। दैट वी डू, उसका एग्जांपल है AGM-88HARM। देन वी हैव स्टैंड ऑफ प्रिसीजन बॉम्बिंग, मीनिंग दैट प्रिसाइज लोकेशन पे बॉम्बिंग कर दो तो रडार सिस्टम खराब कर सकते हो आप, ठीक है। ड्रोन स्वार्म कर सकते हो, मतलब सस्ते वाले ड्रोन लो,
ड्रोन लो, 1000 ड्रोन लो, छोड़ दो। अब 1000 ड्रोन को कैप्चर करने में उनके रडार कंफ्यूज हो जाएंगे और ब्रेक डाउन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक अटैक वी कैन डू, what we can do is we can jam enemy communication and sensors. We can also do ground operations that special forces can go and destroy specific target. India's evolving, तो हमने बहुत सारे काम किए हैं, वो हम बाद में समझेंगे। अब हम थोड़ा सा इंडिया का मिसाइल डिफेंस सिस्टम देख लेते हैं, कौन कौन सी मिसाइलें हमारे पास हैं, उनके नाम देखते हैं, उनका काम देखते हैं। सो इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है उनको हम कैटेगराइज करते हैं 3-4 जगह पे, ठीक है। अनऑफिशियल है, ऑफिशियल नहीं है, लेकिन हम देख सकते हैं कि एक लॉन्ग रेंज सिस्टम है, एक मीडियम रेंज सिस्टम है और एक शॉर्ट रेंज सिस्टम है। अब लॉन्ग रेंज सिस्टम के 2 पार्ट है, ध्यान देना, लॉन्ग रेंज सिस्टम के 2 पार्ट हैं। एक का नाम है पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल PAD, एक दूसरे का नाम है एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल AAD। इनके बारे में डिटेल अभी जानेंगे। फिर आप देखते हैं मीडियम रेंज में हमारे पास आकाश है, स्पाइडर है, 2K12 है, बराक है और QRSAM है। नाम याद रखना, मीडियम रेंज के हैं। अभी ज़्यादातर यही इस्तेमाल हो रहे हैं क्योंकि मीडियम रेंज ही है वो, ठीक है। फिर वेरी शॉर्ट रेंज, मान लो बहुत नीचे से कोई चीज़ चली आ रही है, ड्रोन चला रहा है, उसके लिए हमारे पास बोफोर्स की गन है 40 mm की, KPV हैवी मशीन गन है, हमारे पास 2SU-23-4 शिल्का है, ZU-23-2 है, हमारे पास 2K22 तुंगसुका है। ये सारी चीज़ें बेसिकली, स्ट्रेला भी है, ये सारी चीज़ें बड़ी शॉर्ट रेंज में काम करती हैं। और लेगेसी वेपन जैसे कि S-125, ये बाइक नहीं है, ये वेपन का नाम है, पेचोरा है, और 9K33 ओसा AK है। अब ये सारे नाम आप न्यूज़पेपर में पढ़ोगे, थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले लॉन्ग रेंज सिस्टम में हम देखते हैं पृथ्वी एयर डिफेंस का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि अगर देखो लॉन्ग रेंज जब भी मिसाइल आ रही होगी तो या तो वो एटमॉस्फेयर के बाहर से आएगी, ठीक है, अब पर्यावरण के बाहर से आएगी, एटमॉस्फेयर के बाहर से आएगी, या एटमॉस्फेयर के अंदर से आएगी। तो हम दोनों के लिए अलग अलग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। पृथ्वी को करते हैं हम बाहर से आने वाली चीज़ों के लिए, एक्सो एटमॉस्फेरिक चीज़ों के लिए, और अंदर की जो चीज़ें उनके लिए हम AAD का इस्तेमाल करते हैं। 200-300 से 2000 किलोमीटर की रेंज है, इसमें 150 से 200 किलोमीटर की रेंज है, ठीक है। एल्टीट्यूड भी डिफरेंट है। अब हम देखते हैं, ये इनके फोटोज हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। देन वी हैव दिस मीडियम रेंज सिस्टम। मीडियम रेंज में हमारे पास आकाश है, स्पाइडर है, हमारे पास 2K12 KUV मिसाइल है, ये थोड़ी सी पुरानी मिसाइल है, बराक 8 है, ये कंबाइन हमारे पास इजराइल और इंडिया ने बनाई है, एंड QRSAM है, ठीक है। इन सब में डिफरेंसेस हैं डिपेंडिंग ऑन दी रेंज, डिपेंडिंग ऑन दी स्पीड, डिपेंडिंग ऑन देयर पर्पस, कहाँ वो डिप्लॉयड है, बट ये मीडियम रेंज के सारे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म से लॉन्च हो सकता है, ठीक है। इसमें डिफरेंट मिसाइल हैं, पाइथन 5 और डरबी है, इसकी स्पीड 3.5 है, जबकि इसकी स्पीड डिफरेंट है। फिर इसकी रेंज, इनके कितने डिप्लॉयमेंट है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। यहाँ हमारे इमेजेस भी पड़े हुए हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा ओल्ड है, इन सब का डिफरेंट रेंजेस है। देन वी हैव लेगेसी सिस्टम, जैसे कि S-125 विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस। इनका डिफरेंट ओरिजिन है, डिफरेंट रेंज है। जैसे ये 30 किलोमीटर पे अटैक करता है, 12 किलोमीटर का है, ये 3.5 किलोमीटर का है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे सिस्टम्स हैं। ये जो सिस्टम है ये आई थिंक इस्तेमाल हुआ है। बोफोर्स की गन भी हमारे पास, ये मैंने डिस्कस किया आपके साथ, ठीक है। देन वेरी इंपॉर्टेंट हमारे ड्रोन वॉरफेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज वी हैव बीन यूजिंग दीज सिस्टम्स वेरी रिसेंटली। सो हारोप एंड हार्पी, ये बड़े यूनिक ड्रोन सिस्टम हैं, इजराइल से आए हैं ये, और इनका इस्तेमाल किया गया हमने अभी ऑपरेशन सिंदूर में, सक्सेसफुली डिप्लॉयड टू न्यूट्रलाइज पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम इन दी अर्ली स्टेज ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। ये क्या करते हैं, लॉइटरिंग होते हैं, माने कि ये क्या करते हैं, इनको आप एक बार उड़ाओ, ठीक है, ये 9 घंटे तक हवा में रह सकते हैं बिना किसी के ऑपरेशन के, और ये दोनों तरीके से काम कर सकते हैं। आप चाहो तो आप इनको किसी टारगेट पे लगा दो, या ये खुद ही अपने टारगेट को पकड़ लेते हैं, ठीक है। ऑटोनोमस ऑपरेशन कैपेबिलिटी भी इनमें होती है, और इनमें क्या होता है, एक्सप्लोजिव भर देते हैं जब भी कोई टारगेट दिखता है और एक्सप्लोजिव फूट जाता है, ठीक है। तो ये इनका खास बात होती है। फिर हमारे पास लो कॉस्ट मिनिएचर स्वाम है, यानी कामिकाजे ड्रोन है, यानी इनका काम ही होता है जाके मर जाना उधर, ठीक है। ये सस्ते होते हैं, उनको भेज दो, रडार सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। ये DRDO ने बनाए हैं। फिर हमारे पास एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा है जो इंडिया का ही है, नागास्त्र जिसको हम बोलते हैं, ये भी हमारा है, और इसको डेवलप किया है सोलर इंडस्ट्री नागपुर ने। 1 kg एक्सप्लोजिव लेके जा सकता है। दूसरा हमारा स्काई स्ट्राइकर है, ये जॉइंटली डेवलप है अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज बेंगलोर एंड एल्बिथ सिस्टम इजराइल द्वारा। ये 5 से 10 किलोग्राम एक्सप्लोजिव को लेके जा सकता है अप टू 100 किलोमीटर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑटोनोमस है, रिमोट ह्यूमन कंट्रोल और रियल टाइम वीडियो फीड भी देता है, ठीक है। अगर आपने रिसेंटली वीडियो देखी हो जिसमें वीडियो दिख रही थी, बिकॉज वी हैव ऑल दीज डिफरेंट लॉइटरिंग सिस्टम जो कि वीडियोग्राफी भी हमको प्रोवाइड करते हैं। जब वहाँ जा रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, वीडियो लाइव प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। सो ऑल दिस हैज बीन अ लॉन्ग डिस्कशन, बट आई वॉज वेरी
interested in this. I got to know about all these missiles and the name, at least names of these missiles, and how do they work, how our air defense system works. That was very interesting. All these missiles are very factual. Remember their names and their range at least, but remember how it works. So based on this, try and solve this question. We will jump to the next topic. All right. So the second article relates to the Competition Commission of India and predatory pricing. Very short article. We will see the new definition of predatory pricing and what Competition Commission of India is. UPSC has already asked a question on this topic. They have asked who appoints the chairman of Competition Commission of India. This is a question for you also, because it is very unique appointment and done by one of the executives, not by the president. So tell me in the comment section who appoints the Competition Commission of India chairman. So this will come in your GS paper 2 health. And what CCI has done, Competition Commission in India has done, it has said that we will be going with the new definition of predatory pricing. But what is predatory pricing? Predatory pricing is where a product is or service is priced below its cost. मतलब कि जितने का प्रोडक्ट बन रहा है उससे कम प्राइस पे आप मार्केट में बेचो. उससे होगा क्या, जो आपका जो कंपटीशन है वो खत्म हो जाएगा. ठीक है, जैसे कोई फ़ोन है, वो फ़ोन बनता 15,000 का है, बेचने लग जाओ 10,000 में, तो क्या होगा, जो 15,000 का फ़ोन के जो रेंज दूसरी कंपनीज बना रही होंगी वो मार्केट से बाहर हो जाएंगी. तो इसको बोलते हैं प्रीडेटरी प्राइसिंग. प्रेडेटर कौन होता है? जो कि शिकारी होता है, जो शिकार करता है, उसको प्रेडेटर बोलते हैं. तो प्रेडेटरी प्राइसिंग ये डेफिनेशन होती है. अब CCI ने ये बोला है कि वी विल यूज अ न्यू डेफिनेशन. देयर आर टू थिंग्स रिलेटेड टू दिस न्यू डेफिनेशन. द वेरी फर्स्ट थिंग विच दे आर सेइंग इज that we will calculate the predatory pricing in this manner, or let's say average pricing in this manner, not predatory pricing, average pricing, that whatever in a time period, जैसे 1 साल का टाइम पीरियड है, उस 1 साल के टाइम पीरियड में आपने कितना प्रोडक्शन किया किसी चीज़ का और टोटल कॉस्ट कितनी लगी. क्योंकि कॉस्ट क्या है, वेरी करती है. जैसे मान लो टोमेटो सॉस है, कोई कंपनी बना रही है, ठीक है, अब गर्मियों में वो टोमेटो सॉस उसको सस्ता पड़ेगा बनाने में, लेकिन अगर वही सर्दियों में चले जाओगे तो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा. Depending on the price of the tomato sauce production will differ, the price will differ. So what Competition Commission of India will do, throughout the year they will see how much cartons or liters tomato sauce they have produced, and they will divide it by let's say they will use the total cost that came into that production. तो पूरी कॉस्ट ऊपर रखेंगे, नीचे टोटल लीटर्स रख देंगे, तो उससे क्या निकल के आ जाएगी, एवरेज प्राइस निकल के आ जाएगी. बस वो ये कहेंगे कि जो एवरेज प्राइस है इससे नीचे आप नहीं बेच सकते, आप वो हो जाएगी प्रेडेटरी प्राइसिंग. ठीक है. सो वी विल यूज इन अ टाइम पीरियड, वी विल से इन अ टाइम पीरियड वी विल हैव द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड देन वी विल डिवाइड बाय टोटल आउटपुट. ठीक है, इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि हमने पर मे बी केजी पर कितने रुपए में प्रोड्यूस किया. ये फैक्टर निकल के आ जाएगा कि पर रुपीज़ में इतना केजी पैदा हो गया या पर केजी में इतना रुपया लगा. वट एवर, यू कैन डिवाइड बोथ एंड यू कैन गेट अ रेट. बेसिकली what is written here is that it is saying that we will be having this cost of a good or service would be assumed to be its average variable cost, which is total variable cost divided by total output during the पीरियड, जो मैंने आपको बताया. ठीक है. अब प्रोहिबिशन कैसे है? प्रोहिबिशन है लॉ के अंदर. तो प्रेडेटरी प्राइस जो है वो बंद है कंपटीशन कमीशन एक्ट 2002 के अंदर, सेक्शन 42A(2) के अंदर, जो कि प्रोहिबिट करता है कि आप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं. ठीक है. CCI ने एक और बात बोली, वेरी इंपॉर्टेंट. दे हैव सेड दैट वी विल नॉट डिटरमाइन अ फॉर्मूला, कॉमन फॉर्मूला फॉर ऑल सेक्टर्स. दे आर सेइंग दैट डिपेंडिंग ऑन टाइम, डिपेंडिंग ऑन टेक्नोलॉजी, डिपेंडिंग ऑन सेक्टर, वी हैव टू हैव डिफरेंट यार्डस्टिक to measure predatory pricing or average pricing. ठीक है. So they are keeping it case by case basis, that हर केस बेसिस पे हम डिटरमाइन करेंगे. अब ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है क्या? इट इज़ अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी. प्लीज रिमेंबर, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी established in 2009 under the Competition Commission Act 2002, and it prevents anti-competitive practices, promote and sustain market competition, protect consumer interests, and ensure freedom of trade in India markets. It basically regulates anti-competitive practices like cartels, market price fixing, and abuse of dominant position. It also reviews merger, acquisitions, many other things. कम्बिनेशन बहुत सारी चीज़ें होती है. कुछ कंपनियां हैं जो छोटी कंपनीज को खरीद लेती है. कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है
वो इनको मॉनिटर करता है। रिसेंटली बड़ी बड़ी कुछ सो कॉल्ड कोचिंग्स हैं जो छोटी छोटी कोचिंग्स को खरीदे पड़ी हैं, तो ये भी चीज़ देखी जाएगी कि कंपटीशन में आती हैं कि नहीं। देन कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन बेस्ड ऑन कंप्लेंट रेफरेंस ऑफ गवर्नमेंट सुओ मोटो एक्शंस और इम्पोजिंग पेनाल्टीज। इट ऑल्सो इम्पोज पेनाल्टीज ऑन anti-competitive behavior, avoid advocacy and awareness for enterprise, policymakers and stakeholders. General काम, ठीक है। Based on this discussion, please try and attempt this question. Submit your answer in the comment section. Next article is regarding maternal mortality rate. What is it? Maternal mortality rate is basically death of pregnant women per 1 lakh live बर्थ, 1 लाख लाइव बर्थ, मतलब कि 1 लाख बर्थ होने पर कितनी माताएं हैं, मदर्स हैं जो मर जाती हैं। तो वो ये कह रहे हैं, न्यूज़ ये कह रही है कि एमएमआर जो है वो रिड्यूस हो रहा है। मतलब कि पहले था एज पर दिस ग्राफ 2014 से 16 के बीच में वो था करीब करीब 130 14-16 में, फिर ये हुआ 122, 113, 103 और 97 हो गया 2018 से 20 में। कितना हो गया? 97। यूनाइटेड नेशन एसडीजी प्रोग्राम क्या कहता है? ये होना चाहिए 70। तो अभी हम 97 पे आए वर्ल्ड वाइड, कंट्री वाइज। बट सर्टेन स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश इज स्टिल एट 175, उत्तर प्रदेश इज एट 151, ओडिशा इज एट 135, छत्तीसगढ़ इज एट 109 एंड हरियाणा इज एट 106। यानी कि 1 लाख बर्थ पर इतने माताएं मर जाती हैं इन सारे स्टेट्स में। तो अभी बहुत दूर है अचीवमेंट उसको करने के लिए। जीएस पेपर 2 हेल्थ में आएगा। और जो बैकड्रॉप है वही लेटेस्ट डेटा है। अब लेटेस्ट डेटा रिलीज किसने किया है? दिस हैज बीन रिलीज बाय ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। फाइंडिंग जो मैंने आपको बताई वो ये है। वेरिएशन के बारे में और ये बोलता है कि जो मैक्सिमम डेथ है वो 20 से 29 एज ग्रुप में है, एंड देन जो सेकेंड नंबर पे 32-34 एज ग्रुप में है। Then states with high MMR I have already discussed, and this is the graph which you can use in your mains answer writing. You can say that there is a declining graph in the MMR. If you know the definition, you can write. Global scenario क्या है? Every day around 700 women die because of this issue. So we have preventable causes related to pregnancy that we can prevent. Definitely we can prevent, but they die. Every 2 minutes one mother dies worldwide because of pregnancy issue. 90% of all maternal death occur in low or lower middle income countries. So that is another fact. And UN SDG का जो लिमिट है वो मैंने आपको बता दिया 70 होना चाहिए। MMR कितना होना चाहिए UN के हिसाब से? 70। इंडिया का कितना है अभी? 97। मैटरनल डेथ आपको पता ही है कि जो डेफिनेशन है WHO के अकॉर्डिंग वो ये है डेफिनेशन दैट मैटरनल डेथ इज अ डेथ ऑफ अ वुमन व्हाइल प्रेग्नेंट और विद इन 42 days of termination of pregnancy irrespective of the duration or site of the pregnancy from any cause related to or aggravated by the pregnancy or its management but not from accidental or incidental causes. That is the definition of pregnancy. Meaning वो ये कहना चाहते हैं कि अगर प्रेग्नेंट हैं आप, कितने भी दिन के लिए प्रेग्नेंट हो, कितना भी दिन चल रहा हो आपका और किसी भी कारण से आप मरें, अगर आपकी डेथ होती है तो आप एमएमआर में काउंट होगे, एक्सेप्ट दैट कि आप अगर किसी इंसिडेंट में एक्सीडेंट में ना मरो। और अगर आपने टर्मिनेट कर दी प्रेगनेंसी और 42 डेज के बीच में अगर आपकी डेथ हो जाती है तब भी आप एमएमआर के अंदर काउंट होगे। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है वो मैंने आपको बताया, पर डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ, 1 लाख लाइव बर्थ। ओके। ORGI एंड CCI क्या है? ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया क्या है और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया क्या है? These are founded in 1961 under the Union Ministry of Home Affairs. याद रखना सेंसस कौन कराता है? सेंसस की जिम्मेदारी होम मिनिस्ट्री को होती है, कंफ्यूज मत होना। ओके। इट इज कंडक्टिंग एनालाइजिंग रिजल्ट्स ऑफ डेमोग्राफिक सर्वेस इन इंडिया इंक्लूडिंग दी सेंसस एंड लिंग्विस्टिक सर्वे। तो हमारे यहाँ लैंग्वेज का सर्वे भी होता है सेंसस के साथ, अभी कास्ट सर्वे भी होगा। तो याद रखना लैंग्वेज का सर्वे होता है, कास्ट का सर्वे हो रहा है और अभी सेंसस भी होगा। देन रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इज हेड ऑफ दी ORGI एंड CCI। पोजीशन ऑफ रजिस्ट्रार जनरल की जो होती है वो रैंक ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी होती है। सर्व करता है प्रिंसिपल एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल मैटर्स रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ एंड अदर थिंग्स। ये कंडक्ट करते हैं सेंसस, ठीक है, और ये कंडक्ट करते हैं लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। सेंसस के अंदर सोशियो इकोनॉमिक जियोग्राफिकल एस्पेक्ट जो देखे जाते हैं पॉपुलेशन के, और अब तक 15 सेंसस हो चुके हैं। फैक्ट याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है इस साल। टोटल 15 टाइम हमने सेंसस किया है।
1881 से स्टार्ट हुआ है और पोस्ट 1949 ये जिम्मेदारी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की ही होती है। ओके, सिविल रजिस्ट्रेशन भी होता है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी है इनके पास और इंप्लीमेंट करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ रेट 1969। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, ब्लॉक्स और डिस्ट्रिक्ट्स में, एरियाज में हम कंटिन्यूसली बर्थ एंड लाइफ जो डेथ डेटा है वो कलेक्ट करते हैं और इसके बेसिस पर एक्स्ट्रापोलेट करते हैं कि कितना एमएमआर है, कितना सब कुछ है। ये कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स का। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम्स क्या होते हैं, इसमें डेथ एंड बर्थ का जो डेटा है वो रजिस्टर होता है ऑन टाइम और डिलेज। ऑन टाइम का मतलब है कि विद इन 21 डेज इट शुड बी डन, इफ नॉट देन डिलेज के लिए भी हमारे पास एक्ट के अंदर रूल्स हैं। ये 2023 में अमेंड भी किया गया है। देन रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स ये है मैंडेटरी है, 21 दिन के अंदर आप डिले तरीके से भी कर सकते हैं। Based on this discussion, try and attempt this question. Submit your answer in the comment section. We will jump to the next article. Is related to chikungunya virus. चिकनगुनिया वैक्सीन। चिकनगुनिया वैक्सीन जो है यूरोप ने उसको सस्पेंड कर दिया है। यूरोप हैज सस्पेंडेड दी चिकनगुनिया वैक्सीन, दी ओनली चिकनगुनिया वैक्सीन एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड। द नेम ऑफ द वैक्सीन इज क्वाइट अ लिटिल डिफिकल्ट, सो आई विल टेक द नेम in just a second, but relevance is GS3 science and technology and backdrop है यूरोप रिव्यू वेल नेवाज चिकनगुनिया वैक्सीन। अब मच्छर बहुत बेकार चीज़ है, मच्छर क्या करता है, बहुत सारी बीमारियां फैलाता है। चिकनगुनिया सो इज वन ऑफ देम। द वैक्सीन का नाम इज एलोन मस्क का बच्चा लग रहा है, IXCHIQ, IX चिक नाम है इस वैक्सीन का, याद रखना। दिस इज रिलेटेड टू चिकनगुनिया वैक्सीन। दिस इज अ लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन, LAV। लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन का मतलब क्या होता है कि हम विरुलेंट या फिर कह लो कि जो वायरस होता है उसको हम थोड़ा सा ठंडा कर देते हैं, उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ठंडा कर देते हैं, यानी थोड़ा सा उसको पोक करके उसको खत्म कर देते हैं उसकी कैपेसिटी, एंड देन वी गिव यू एज अ वैक्सीन। सो लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन जो है वो काफ़ी इफेक्टिव होते हैं, आपको दिए जाते हैं। और ये जो चिकनगुनिया का वैक्सीन है वो भी यही है। ये फ्रेंच कंपनी वेलनेवा ने डेवलप किया है और WHO ने इसका अप्रूवल दे रखा है USA, कनाडा, EU के लिए, डिफरेंट एज के ग्रुप के लिए, ठीक है। बट वी हैव सीन दैट इट हैज डेवलप कॉम्प्लिकेशन इन दी एडल्ट्स मोर देन 60-64 years above age, so that's why Europe has suspended this, okay। And we recently had an agreement with Serum Institute of India to develop chikungunya vaccine for India also. It is not there in India as of now, but we have used it. What are the different types of vaccine? Before that we will learn what is this chikungunya disease. It is a viral disease with a lot of joint pain and many other things, and Aedes mosquito जो होता है वो चिकनगुनिया वैक्सीन को कॉज करता है। एक और मॉस्किटो है जिसका नाम है Aedes albopictus एंड Aedes aegypti। ये सेम वही मॉस्किटो हैं जो कि डिफरेंट अदर डिजीजेस को भी फैलाते हैं, जैसे कि डेंगू को और जीका वायरस को, ठीक है। इसमें रैश हो जाती है, बैक पेन होता है, जॉइंट पेन होता है, वॉमिट होता है, नोजिया, हेडेक, चिल्ड्रन फीवर भी होता है, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, एंटीवायरल ड्रग अवेलेबल नहीं है, हम सिर्फ मैनेज करते हैं, फीवर को कम करते हैं, एंड देन वी ट्राई टू मैनेज दिस। The last thing that you should know, a different type of vaccine. The vaccine is live attenuated, which I have already discussed. We use it for rotavirus, smallpox, chickenpox, yellow fever, and multiple doses are required, and it is very effective also. Then we have inactivated, meaning that some chemical elements are used to basically inactivate the virus element, and then it is not that effective. It is maybe having poor effects, and polio virus is using this, the inactivated. Then we have hepatitis A, then we have rabies, then we have viral vectors. Viral vectors में क्या होता है कि जो वायरस होता है उसका ही हम एक तरीके से वेक्टर निकाल लेते हैं और वो हम उसके जो जीन होते हैं उनको ही भेज देते हैं। इससे होता क्या है कि प्रोटीन जनरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल इबोला का वायरस, इन्फ्लुएंजा, सार्स कोविड, इसमें सिंगल या मल्टीपल डोज हो सकते हैं और ये बहुत ही इफेक्टिव होता है, लास्ट करता है लॉन्ग टाइम के लिए। देन वी हैव सब यूनिट और प्रोटीन बेस्ड। हम क्या करते हैं, जीन्स नहीं भेजते, हम क्या करते हैं, सब यूनिट भेजते हैं, एक प्रोटीन का पार्ट भेज देते हैं अंदर, और वो क्या करता है, वो इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है। ट्रिगर होने के बाद बेसिकली हमारे पास इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। हेपेटाइटिस वी है, पेपिलोमा वायरस है, सार्स कोविड 2 है, इसमें मल्टीपल डोजेस लगते हैं, पुअर इफेक्ट होता है इसका, क्योंकि देखो प्रोटीन है, प्रोटीन अंदर जाएगा, इफेक्टिव होगा नहीं होगा, इट डिपेंड्स। Secondly, we come to nucleic acid vaccines, in which what we do, we incorporate the true gene into the true host, and then true antigens are produced, and that is very effective, good effect होता है इसका, और मल्टीपल डोज लगते हैं। सार्स कोविड 2 इसका एक एग्जांपल है। अब इतने सारे वैक्सीन मैंने आपको बताए, याद रखने की कोशिश करना, डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं उसमें, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन बेस्ड ऑन दिस डिस्कशन, प्लीज
try and attempt this question. We will jump to the next topic. Next topic is the main topic, very short topic, but you must remember public health system is very important topic. UPSC has asked question on this. We must know what is public health. Public health is very different from a hospital. Usually people think that hospitals are public health, but it is not so. So this article is basically explaining the definition of the public health, what is public health, and then also it is going beyond this public health and saying that, okay, what do we understand in India and why it is structurally struggling and how we can do it better through education. So that is the challenge. So backdrop is challenges in public health system in India, relevance is GS to health. So पब्लिक हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? पब्लिक हेल्थ की डेफिनेशन है कि ये बोथ आर्ट भी है और एक साइंस भी है, मीनिंग दैट कि इट कंबाइंस करता है मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग को, सोशल साइंसेस को. अब उसका एग्जांपल इन्होंने बड़े अच्छे एग्जांपल्स दिए हैं. क्या एग्जांपल दिए हैं? वो बोलते हैं कि देखो मेडिकल साइंस का मतलब है एग्जांपल के तौर पे सेल थ्योरी है. तो सेल थ्योरी ये बताएगी कि जर्म थ्योरी जो है कि जो डिसीज़ है वो जर्म की वजह से होती है. ठीक है, आप उसमें एक केमिकल डाल के उसको सॉल्व कर सकते हो. बट डू यू थिंक दैट हेल्थ इज जस्ट रिलेटेड टू दिस? अगर आपको पता है कि किसी सोसाइटी में कोई एक इन्फेक्शियस डिसीज़ फैली है, तो आपको ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि वहाँ का सैनिटेशन वर्क कैसा है, यानी वहाँ सीवेज सिस्टम कैसे काम कर रहा है, वहाँ वाटर प्यूरिफिकेशन कैसे हो रहा है. सो दिस विल कम इन द इंजीनियरिंग सेक्टर. बट देन यू शुड नो दैट कि वहाँ पुअर लोग रहते हैं कि रिच लोग रहते हैं. सो देन यू कैन टारगेट स्पेसिफिक एरियाज. सो सोशियोलॉजी विल ऑल्सो प्ले अ रोल. सो दिस इज combination of different aspects of the social sciences and sciences. That is what this article is saying, that public health is a multidisciplinary aspect in which we are using epidemiology, maybe medical science, we are using engineering, we are using sociology, we will be using a lot of different things. But in India, the public health system works very differently. The first and foremost reason for this kind of public health system is the historical reason. Why? Because earlier the British system was unitary system in which one government was there. Provinces were there, but the federalism was never there. Federalism never started in India. 1935 Act came, but it could not establish federal system. So we had this unitary healthcare system, and then we became a federal country. So we just simply tore this system away into 2-3 pieces. Some people will be handling certain things, some people will be handling certain other things. Public health concept, a unitary, a combined, joint system was not established. Just like judiciary is there, so we did not establish that kind of system. So they have given certain examples to explain this. The first thing which they are saying that it is fragmented public healthcare governance. For example, drug safety जो है falls under the concurrent list. क्वारंटाइन, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन एटसेट्रा बिलोंग टू द यूनियन लिस्ट. सो कंकरेंट लिस्ट में अलग काम चलेगा, यूनियन लिस्ट में अलग काम चलेगा. हेल्थ केयर सिस्टम आपको पता है कहाँ आता है? स्टेट लिस्ट में आता है. सो दिस इज अ डिवीजन. देन वी हैव डिसजॉइंटमेंट एंड कॉन्ट्राडिक्शन इन द विजन. जैसे ICMR है, ये कॉम्बैक्ट कर रहा है टोबैको के अगेंस्ट, जबकि ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, वो टोबैको का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है. तो गवर्नमेंट का एक ऑर्गन क्या कह रहा है कि टोबैको ज़्यादा बढ़ानी चाहिए, हमें उसका प्रोडक्शन ज़्यादा करना चाहिए. वहीं गवर्नमेंट का दूसरा हिस्सा क्या कह रहा है? नहीं, टोबैको का इस्तेमाल मत करो. सो दैट इज देयर. देन वी हैव इशू विद द पब्लिक हेल्थ एजुकेशन. मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एजुकेशन को एक एग्जांपल के तौर पे लिया है इन्होंने कि करिकुलम जो है वो अक्रॉस इंडिया वो बहुत फ्रेगमेंटेड है. यानी कुछ यूनिवर्सिटी जो है रिस्ट्रिक्ट करती हैं सिर्फ मेडिकल, डेंटल और अलाइड हेल्थ केयर भी के ही आ सकते हैं. बट एज अ पब्लिक हेल्थ यू शुड अलाउ अदर पीपल्स ऑल्सो. जैसे कोई अगर फूड टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है वो भी आदमी आ सकता है, क्योंकि फूड सेफ्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पब्लिक हेल्थ का. देन कोई अगर सैनिटेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग करा हुआ आदमी है, वो सैनिटेशन में एक्सपर्टीज है, उसको भी आप बुला सकते हो. इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ऑल दीज पीपल कैन पार्टिसिपेट इन पब्लिक हेल्थ. सो दैट इज देयर. देन मिनिमल अटेंशन दिया जाता है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग पे, जिसका मतलब डिजाइनिंग और मेंटेनिंग सिस्टम, वाटर प्यूरिफिकेशन, इन पर ध्यान नहीं दिया जाता. देन दे आर सेइंग दैट न्यूट्रिशन को स्टैटिक कॉन्सेप्ट के तौर पे देखते हैं, मीनिंग दैट कि इंटीग्रेशन बहुत कम है फूड प्रोसेसिंग, फूड टेक्नोलॉजी का हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में. क्योंकि अगर हम फूड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो हम न्यूट्रिशनल, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे मिल्क है, मिल्क हमें कॉस्टली पड़ता है. क्यों मिल्क कॉस्टली पड़ता है? क्योंकि मिल्क के साथ इनहेरेंट प्रॉब्लम है, आज प्रोड्यूस किया कल बेचना पड़ जाएगा. वी हैव टेक्नोलॉजी टू मेक इट, पैक इट सेफली, वी कैन कीप इट. हाउ?
वी हैव टेट्रा पैक टेक्नोलॉजी एंड वी हैव पास्चराइजेशन. हम क्या करते हैं, मिल्क के साथ मिल्क को एकदम से हीट करते हैं, देन एकदम से ठंडा करें अगर, और फिर उसको सीधा सैनिटाइज तरीके से टेट्रा पैक में अगर उसे पैक कर दें, वी कैन यूज इट फॉर 6 months. It is as good as the fresh milk, but there is a cultural barrier that people do not trust that milk. Secondly, we do not have these technologies, very costly these technologies. Imagine if Indian farmer gets to establish a warehouse with this technology. He can produce so much milk, he can store it. एक कोल्ड स्टोरेज बन जाएगा, टेट्रा पैक में भर के आज का मिल्क जो है स्टोर करके रख दिया, कल का स्टोर करके लिया, परसों का कर दिया, और उसको लगातार वो बेच सकता है. इमेजिन हाउ मच production he can achieve on the same line. Right now what he has to constrain to, for example, there are only 2 people in milk sector, let's say. So all this food technology we are not incorporating. Those 2 people will limit themselves to maybe 50 liter of milk. वो 50 लीटर से ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको उसको डिस्ट्रीब्यूट करने भी जाना है, कल उसको रख नहीं सकते. ज़्यादा से ज़्यादा वो उसका क्या करेंगे, घी बना लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसका मक्खन बना लेंगे, दैट्स इट. वी डू नॉट हैव लेट्स से चीज़ प्रोडक्शन, we do not have many other things. So what this article is saying that public health system जो है वो अलाइन होने चाहिए फूड टेक्नोलॉजी के साथ. अगर वो अलाइन होंगे तो अब क्या होगा, अगर मान लो हमारे पास टेट्रा पैक वाला सिस्टम आ जाए तो मिल्क बहुत सस्ता हो जाएगा, हर किसी को मिल्क पीने को मिलेगा, हर कोई हेल्दी हो सकता है. अभी क्या है, मिल्क कॉस्टली है. अभी रिसेंटली मदर डेयरी ने मिल्क का कॉस्ट बढ़ाया है. दैट इज द रीजन. इनएडिक्वेट फोकस ऑन हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट विच इवेल्युएट्स द कॉस्ट इफेक्टिवनेस इंपैक्ट ऑफ हेल्थ इंटरवेंशन. देन वी हैव 2-year MPH प्रोग्राम. 2 साल का प्रोग्राम में सारा कुछ सिखा दोगे आप पब्लिक हेल्थ के बारे में. दैट कैन नॉट हैपन. सो दीज इशूज आर देयर विद द इंडियन पब्लिक हेल्थ सिस्टम. वे अहेड क्या है, वी कैन हैव अ स्टैंडर्ड बेसलाइन करिकुलम. वी कैन डिसाइड दैट ओके एजुकेशन में हम ये कर सकते हैं. वी कैन हैव कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ FSSAI टू इम्प्लीमेंट द इंडियाज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑन फूड सेफ्टी. वी कैन हैव ट्रेनिंग इन बिहेवियरल साइंस. फॉर एग्जाम्पल वी कैन इंक्लूड tobacco consumption and other things to improve the healthcare sector. Then we have evidence informed policy decision. For example, we can build capacity, we can have more institution need to offer courses on health technology assessment. So this is very focused on public health education. Overall public health has a problem, public health education also have a problem. So very specific article was there, very targeted article was there, public health and public health education. So we have discussed it. This is the conclusion that we should have a public health that must be treated as a cohesive national agenda, and unified and coherent approach should be there. Chain of command, a common vision rooted in equity, resilience and preparedness is essential for a better national well-being. On this discussion, please try and attempt this question. We will meet again tomorrow with another session of daily news analysis. Stay safe, don't go out much, and follow the government official channels for information. Do not spread misinformation, do not spread anything that you do not trust, and keep calm, and things will be over very soon. All right, thank you.